Hello everyone, this is Priyanka Sinha and I welcome you all in Careers Catalyst. So let's begin the preparation of Term 1 examination. Yes, as you already know, in Term 1 examination, you will have the question like multiple choice and the assertion and reasoning based question. Multiple choice question we already know how to solve, बचपन से करते आ रहे भाई, है ना? And assertion and reasoning question is quite new for you. So today in this video, I'm going to explain you how to solve this assertion and reasoning based question. So first of all, what is the meaning of this term assertion, and of course what is the meaning of this term reason? So first of all we will try to understand the meaning of these two terms जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, that is what assertion and reason. So what is assertion? Assertion is practically a statement, a bold statement, or simply you can say a fact. Okay, what is the reason? Reason is basically the explanation of that particular fact or that particular statement. So practically in assertion and reasoning question you will have a assertion part, you will have a reason part. यानी कि इंडिविजुअली आपको दो स्टेटमेंट दिए होंगे एज अ assertion और डेफिनेटली एज अ रीजन. व्हाट यू नीड टू डू, you need to read these two statement carefully first of all, right? पहले आप क्या करोगे, assertion को carefully पढ़ोगे, reason को carefully पढ़ोगे, and let's try to understand कि भाई ये जो assertion और reason लिखे हुए हैं ना, ये logically correct है या नहीं. पहला बात तो हो गया, पहली काम हो गई. Secondly, you will try to correlate this assertion and reason. Means to say, you need to understand whether this particular reason that we have given is the correct explanation of that statement or not. बस इतनी सी बात करनी है, हमारा assertion और reasoning type question हो जाएगा solve. तो क्या दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, पहले उसकी बात कर लेते हैं. First of all, read both statement, assertion and reason carefully and check if both statement are logically correct or not. आई एम श्योर इट इज क्लियर टू यू. आपको असर्शन और रीजन वाले पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये असर्शन और रीजन वाले जो स्टेटमेंट है ना, ये लॉजिकली करेक्ट है या नहीं. अब ये लॉजिकली करेक्ट है या नहीं, ये जानने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू रीड योर टेक्स्ट बुक वेरी केयरफुली. यानी कि आपको नॉलेज तो होना चाहिए पहले. तो पहला काम तो पढ़ाई करना है, उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? सो when you will try to understand this assertion and reasoning, both the statement are logically correct, then what you need to do? Then if both statement, assertion and reason are correct, then of course you need to try to connect assertion and reason. You need to understand this, whether this particular reason which we have given is the correct explanation of that statement or that assertion or not. ठीक है, तो दूसरा काम आपको क्या करना है, असर्शन और रीजन को पढ़ने के बाद जब आपको लग जाता है कि ये लॉजिकली करेक्ट है, तो हमें ये समझना होगा कि दिस पर्टिकुलर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट असर्शन और नॉट. वेरी सिंपल. नाउ व्हाट विल बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन यू विल हैव गिवन, जैसे कि यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट देख रहे हो, कुछ ऐसा ही आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन में लिखा होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बिलो क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो भी नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे उसके लिए दो स्टेटमेंट दिए होंगे. वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन. कोई दिक्कत नहीं, आपको दो स्टेटमेंट होंगे, पहला लेबल होगा असर्शन से, दूसरा लेबल्ड होगा रीजन से. कोई दिक्कत नहीं. ओके, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड ABCD. उसके बाद क्या लिखा होगा, यू विल हैव 4 ऑप्शंस और 4 कोड, दैट इज A, B, C and D, दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, राइट? आपको इन चारों कोड में से किसी एक कोड को चूज करना है. तो चारों कोड्स क्या है पहले इसे समझ लेते हैं, देन वी विल सॉल्व फ्यू एग्जांपल्स आल्सो. ओके, तो आप कैसे सॉल्व करने वाले हो असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन को, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट कोड ए की बात करते हैं. क्या लिखा है कोड ए में, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्या बोल रहे हैं कि जब आप स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो, असर्शन और रीजन वाले स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो, तो आपको अगर पढ़ के लग रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट आर करेक्ट, और आपको ये भी लग रहा है कि जो भी रीजन वहां पे लिया हुआ है that reason is the correct explanation of assertion, so definitely at that time you can choose option A. समझ में आ गया? ऑप्शन ए कब चूज करना है, जब आपको असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही लगे और आपको ये भी लगे कि ये जो रीजन है ना, ये इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ऑप्शन ए चूज करोगे. व्हेन यू विल चूज ऑप्शन बी,
जब आपको लगता है कि बोथ assertion and reason are individually a perfect statement, a logically correct statement, but that reason is not the correct explanation of assertion. समझ में आ रहा है? यानी assertion और reason अपने आप में दोनों सही स्टेटमेंट है, दोनों लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट है, बट इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों वर्ड या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं. तो डेफिनेटली एट दैट टाइम यू विल चूज ऑप्शन बी. क्लियर? थर्ड ऑप्शन कब चूज करोगे? जब आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हो और आपको लगता है कि असर्शन वाला स्टेटमेंट तो सही है, लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट है, पर जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट ही गलत है, यानी कि लॉजिकली दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो डेफिनेटली इन दैट केस यू विल चूज ऑप्शन सी, वेयर वी हैव गिवन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग और रीजन इज फॉल्स. ठीक है. फोर्थ ऑप्शन डी कब चूज करोगे? जब आप असर्शन और रीजन वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हो और पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है कि द असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है ना, दैट इज लॉजिकली रॉन्ग, मीन्स टू से द स्टेटमेंट दैट वी हैव गिवन इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, एंड द रीजन इंडिविजुअली एक सही सा कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है वहां पर, रीजन अपने आप में एक करेक्ट स्टेटमेंट है. तो डेफिनेटली इन दैट केस व्हाट यू विल चूज ऑप्शन डी. क्लियर है? तो व्हेन यू नीड टू चूज ऑप्शन ए बी सी डी, जब आपको ये समझ में आ जाता है, सो डेफिनेटली इट विल वेरी इजी टू सॉल्व द असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन. नाउ आई हैव 4 एग्जाम्पल हियर, एंड ये चारों एग्जाम्पल में ना हम बारी बारी से चारों ऑप्शंस को चूज करने वाले हैं. तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये स्टेटमेंट कब, आपको ये सारे ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को कब चूज करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं. यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है, दीज आर जनरल साइंस क्वेश्चन, लाइक नाउ एट दिस स्टेज इन 9th and 10th स्टैंडर्ड डेफिनेटली यू आर एबल टू नो अबाउट दीज ऑल थिंग्स. सो दीज आर जस्ट अ फैक्ट जो कि आपको पहले से पता है. सो आई चूज हियर दैट टाइप ऑफ फैक्ट ओनली, सो दैट कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एग्जाम्पल, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी हियर, असर्शन. ध्यान से समझोगे. असर्शन मीन्स टू से अ स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट लिखा है? द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या लिखा है हमारा? द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ठीक है, विच इज कॉल्ड विलाई. अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपको पता है कि ऐसा कुछ होता है, तो डेफिनेटली यू विल से यस, राइट, बिकॉज वी नो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में ऑफ कोर्स काफी सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम क्या डिफाइन करते हैं? विलाई से डिफाइन करते हैं. अब ये बातें तो क्लियर है. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि हम इसे क्या डिफाइन करते हैं? विलाई से डिफाइन करते हैं. यानी कि असर्शन इज ट्रू, दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू. कोई दिक्कत नहीं. चलो ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही कट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? असर्शन इज फॉल्स. दैट मीन्स अगर हमारा असर्शन ट्रू है, तो ये ऑप्शन डी तो आप पहले से ही अपने दिमाग से निकाल दो. ठीक है, अब पढ़ते हैं रीजन को. द विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. अभी हमें पता है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई एक प्रोजेक्शन है, डेफिनेटली इट हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. ओके, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू डू दीज ऑल वर्क्स वेरी केयरफुली और वेरी सिंपली, राइट. हम बहुत आसानी से ये काम जो है वो कर पाते हैं. तो डेफिनेटली रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, यानी इंडिविजुअली रीजन एक करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड इफ यू विल ट्राई टू इंटरलिंक दिस टू, अगर आप असर्शन और रीजन को इंटरलिंक करने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर असर्शन. समझ में आ रहा है? आपने देखा कि असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है, तो हाँ सही है. आपने पढ़ा रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, तो हाँ सही है. सो डेफिनेटली ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही चले गए हमारे. ये दोनों ऑप्शन को हमें पढ़ना ही नहीं है. क्यों? बिकॉज हमारा असर्शन भी सही है, एक बोल्ड एक करेक्ट स्टेटमेंट है, लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट है. हमारा रीजन भी सही है, बिकॉज इंडिविजुअली दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट. नाउ वी नीड टू इंटरलिंक दीज टू. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? अगर ऐसा लग रहा है, सो डेफिनेटली वी विल चूज आवर आंसर एज ऑप्शन ए. क्या चूज करोगे आप? ऑप्शन ए, बिकॉज ऑप्शन ए में क्या लिखा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. यानी कि यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एंड दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ऑल्सो. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू चूज ऑप्शन ए हियर. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू हाउ यू विल चूज. ये सारे ऑप्शंस को देख के हाउ यू विल चूज कि आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें चूज करना होगा, कौन सा ऑप्शन चूज करना है हमें, ये आप यहाँ से समझ सकते हो. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं. ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन 2.
अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीज आर जस्ट अ कॉमन क्वेश्चन जो हमें अभी तो पता ही है, बिकॉज यू आर इन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड नाउ, सो डेफिनेटली ये सारे टर्म्स आपको पहले से पता है, बिकॉज ये सारी चीजें हमने बहुत पहले सीख ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो असर्सन, सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, ये आपने 7th में सीखा, 8th में सीखा है ना। तो सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, अंडर केरोसिन। तो क्या लगता है आपको, ये असर्सन वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है? यस, आवर असर्सन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अगर असर्सन सही है तो ये वाला ऑप्शन तो हम निकाल लेते, बिकॉज ये ऑप्शन तो हमारे किसी काम का नहीं रहा, है ना। नाउ रीजन पढ़ते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप 1, सो दे आर अल्कली मेटल। अब बोल रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है ना, ये दोनों ही ग्रुप 1 में बिलोंग करते हैं। तो यस, मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि सोडियम और पोटेशियम जो है ना, ये दोनों ही ग्रुप 1 में बिलोंग करते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे आर डिफाइंड एज अल्कली मेटल ऑल्सो। इनका एक अलग नाम है, इसे हम कौन सा मेटल बोलते हैं, अल्कली मेटल। तो प्रैक्टिकली मैं अगर आपको बताऊं तो दिस रीजन इज इंडिविजुअली अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो रीजन है ना, ये हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि असर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू। इसका मतलब ये हुआ, बिकॉज रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट मीन्स असर्शन भी सही, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, दोनों ही सही है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन भी गया काम से, हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना, ये करेक्ट है। तो ठीक है, अब हमें चूज करना है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से। नाउ सोडियम और पोटेशियम को अंडर केरोसिन क्यों स्टोर करते हैं, क्या इसका रीजन ये है? नहीं, इसका रीजन ये नहीं है। सोडियम और पोटेशियम को अंडर केरोसिन हम इसके लिए स्टोर करते हैं बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव विथ वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टोर सोडियम एंड पोटेशियम अंडर केरोसिन। तो ये स्टेटमेंट, ये रीजन तो यहाँ लिखा नहीं है, दैट मीन्स कि असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, बट दिस रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, कौन सा ऑप्शन चूज करना है? डेफिनेटली ऑप्शन बी चूज करना है। क्लियर? ऑप्शन बी क्यों चूज कर रहे हैं? बिकॉज हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट दिस रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर असर्शन, दैट्स व्हाई हमने क्या किया, हमारा ऑप्शन बी चूज कर लिया। क्लियर? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो अभी क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। दिस इज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है? इफ रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन, रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन के बाद रेज डाइवर्ज होते हैं फ्रॉम द लेंस, देन द लेंस मस्ट बी कनकेव। तो हम कौन सा लेंस बोलते हैं? उसे कनकेव लेंस बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, दो तरह के लेंस होते हैं, एक तो हो गया ये कन्वेक्स और दूसरा हो गया ये हमारा कनकेव। जब आप कनकेव लेंस की बात करते हो, दिस इज द कनकेव लेंस, राइट? जब आप कनकेव लेंस की बात करते हो तो रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या ऐसा होता है? यस, ये सारे रेज जो है ये क्या होते हैं, ये देखो इस तरह से डाइवर्ज हो जाते हैं, है ना। सो रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन, सो करेक्ट, ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, असर्शन इज ट्रू। अब रीजन की बात करते हैं। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज। कनकेव लेंस, ये देखो ये है हमारा कनकेव लेंस। क्या कनकेव लेंस ऑलवेज रियल इमेज फॉर्म करता है? नो, दिस इज जस्ट अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? बिकॉज वी नो कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा रीजन है ना, ये तो भाई हो गया फॉल्स। अब असर्शन सही है और रीजन गलत है। अब गलत है मतलब ये दोनों ऑप्शन तो चले गए, बिकॉज यहाँ पर तो दोनों स्टेटमेंट सही है ना। क्या है? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो हमें कौन सा स्टेटमेंट चूज करना होगा? डेफिनेटली वी नीड टू चूज ऑप्शन सी, बिकॉज हियर असर्शन इज ट्रू बट द रीजन दैट वी हैव गिवन इज फॉल्स। क्लियर? तो इस तरह से हमने इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो चूज कर लिया। तो ये हो गया असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन टाइप का एग्जाम्पल 3। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल 4। आप देख पा रहे होंगे मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे चारों एग्जाम्पल में आपको चारों अलग अलग ऑप्शंस चूज करने मिल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर आप बुक को बहुत केयरफुली नहीं पढ़ रहे हो, सो डेफिनेटली एट दैट टाइम यू विल नॉट एबल टू आंसर इट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पहले तो अपने नॉलेज को बढ़ाना है। When you will able to do this, then of course it will be very easy to solve this assertion and reasoning type question. Okay? Question number 4. Assertion.
सलाइवा कंटेन गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा कंटेन गैस्ट्रिक जूस, भाई ये स्टेटमेंट ही गलत है ना, बिकॉज सलाइवा कंटेन व्हाट, सैलिवरी एमिलेज जूस, ये तो हमने बहुत पहले से सीखा है, यानी कि आपका असर्शन वाला पार्ट जो है ना, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर? नाउ रीजन, गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन, क्या गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं? यस, गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। तो इसका मतलब ये गलत बिकॉज हमारा असर्शन ही फॉल्स है, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट चूज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब आते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरफ। सो डेफिनेटली अब हमारा असर्शन फॉल्स है और रीजन सही है, ठीक है, तो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर दैट वी नीड टू चूज, ठीक है। तो ये चारों एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर किए ना, इन चारों एग्जाम्पल में हमने ये सीख लिया हाउ नीड टू सॉल्व दिस असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। I hope it is very clear to you. Now from today onwards, definitely one by one I will take assertion and reasoning type question of each and every chapter that basically will come in your term 1 examination. So watch this video carefully, and of course after that you will able to solve the assertion and reasoning type question very easily. Okay, so thank you and bye bye.